Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूँ राघव। देखते रहिए अनोखी बातें ऑन भोजपुरी बातें। थैंक यू। All are aware of this, why we all are gathered here. We all are gathered here for the trailer release and the audio release of this Bhojpuri movie, Halfa Macha Ke Kar. Well, before we begin with the day, before we begin with this evening, once again I request you all to be kindly seated. मैं सभी से request करूँगी, आप please थोड़ी देर के लिए सभी अपना स्थान ग्रहण कर। Alright, thank you so much everyone. Please be seated. Well, इस शाम का हम आगाज करेंगे। Well, the director tour, known for directing stylish suspense, action, and romantic thrillers in Bollywood. The tour directed landmark Bollywood movies like Khiladi Bazigar, Socho, Ajnabi Badshah, Etraz, Hamraz, 36 Chinatown. मैंने शुरुआत में भी कहा कुछ नाम
ऐसे नाम हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अक्सर आप उन्हें टीवी पर देखते आए हैं, सुनते आए हैं, बहुत सारे फैंस हैं उनके, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके। सुपर मॉडल, मिस टूरिज्म वर्ल्ड, शी हैज डन लॉट ऑफ टीवी reality shows, Big Boss, Nach Padiye, Survivor, and the films like Corporate, Dhol, 36 Chinatown. Well, if I say 36 Chinatown, here we have the director duo Abbas Mastan sir. Here we have the actress with us, Payal Rohatgi. But जोरदार तालियां हो जाएं. Thank you so much, ma'am. We are delighted to have you amongst us. All right, ladies and gentlemen, as I already stated it, that we all are gathered here for the Bhojpuri movie. This movie has something really special. ये movie एक ऐसी movie है, अक्सर हम बहुत सारी भोजपुरी movies देखते हैं, but you are gonna find it unique in every way. हर तरह से आप इसमें एक अलग angle, एक अलग twist देखेंगे. For some reasons, actress is not here, the lead actress, the one who's playing the lead role in the movie is not here. So we would be calling her, or if she comes later, we would be introducing her then. Let me call upon none other than my personal favorite, absolutely gorgeous Payal ma'am on stage, please. With round of applause, please. और कुछ और नाम जिन्होंने अपनी बेहतरीन कलाकारी, अदाकारी आपको इस मूवी में दिखाई और देखने को हमें मिलेंगी. So we have to watch we have to actually wait for the release. मैं उन सभी नाम, वो सभी नाम आप सभी से रूबरू कराते हुए समर्थ चतुर्वेदी, अनूप अरोड़ा जी, मिस्टर मनोज टाइगर, मिस श्रद्धा यादव, मिस्टर संतोष पहलवान. जोरदार तालियां हो जाए for all other actors as well. And in this Bhojpuri movie, there is not only one but lot of celebrities whom we all would be witnessing. हम उन सभी को देखने वाले हैं अपकमिंग मूवी में, और बहुत से नाम ऑलरेडी मैं आप सभी से रूबरू करा चुकी हूँ. तो मैं एक और बार कुछ नाम आपके बीच लेते हुए, जिनका हम इंतजार अभी कर रहे हैं, आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा. Here we have Prem Chopra sir, फिर से जोरदार तालियों के साथ. And in this movie we are going to witness performance of Mr. Ranjit sir. Ranjit sir की performance भी आपको देखने को मिलेगी. Raza Murad sir, Bruna Abdullah, Sarah Khan, Ehsan Qureshi, Sunil Pal, and Sambhavna Seth. Thank you so much everyone. I think I don't have to remind you every time for a round of applauses. We all are gathered here for this, and I'm going to take a few minutes. So let's appreciate all of the actors for their brilliant acting with round of applauses. Thank you so much. दिन बाकी है, so let's be ready for that. By the meanwhile, I request everyone, round of applauses for Rakhi Sawant, absolutely stunning and gorgeous. Thank you so much, ma'am, for joining in. We're delighted. Teachers and our dignitary, Abbas Mastan sir, to come up on stage, please. I request Bollywood actor, versatile and captivating, Mr. Sunil Shetty, to join us on dais, please. I request living legend, Mr. Prem Chopra, to please come up on stage. Now I request Payal ma'am to join us on stage, please. I request you sir to please come up on stage. I already made announcement. Please sir, join us on stage. Zordar taaliyan ho jaye everyone. Yes sir. I request Rakhi ma'am to come up on stage, please. Rakhi ma'am. Well, with round of applauses once again. I won't be sparing you for next few minutes. I request you everyone. Let's cheer them up, everyone. By the meanwhile, I would like to call upon the producer of this movie, Mr. Ramesh Nair, on stage. I request the director, sir, Mr. Premanshu Singh, to come up on stage, please. And without the next name, we cannot even release the audio. I request from Yashi Music, Mr. Sinha, to come up on stage, please.
So now we are ready for the audio release, and by the meanwhile I request ma'am to come up on stage along with Nidhi, please ma'am. अरे बैठ जा भाई, बैठ जा, हट जा भाई, 10 मिनट के लिए बैठ जा, 10 मिनट के लिए. And now I request everyone with round of applause. Here we have another brilliant actor of our Bollywood industry. The name who needs no introduction at all. Raza Murad जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी to please come up on stage. And our music director of the film, Mr. Ghungru, I request you to please join us on stage. I request Mr. Ghungru to come up on stage, please. And the choreographer of the movie, I request you to please be on dais. We have been watching all those exciting dance moves. I request you to be on stage, please. जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए. I believe now we are all set to release the audio, and for that I request with the countdown we are going to release the audio. बैठ जा ना यार, निकल जा, चलते निकल जा, निकल जा. Also our chief guest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Everyone put your hands together. So now we release the audio of this film officially. Many congratulations to the entire team and the star cast. I request once again with round of applause everyone. जोरदार तालियां हो जाएं. Now I request after a few of the pictures. Alright. सर मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कुछ लफ्जों के साथ आगे बढ़ते हुए. हमने अभी ट्रेलर यहाँ पर दिखाया, ऑडियो रिलीज हो चुका है, तो आप राघव के लिए जो कि इस मूवी में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लीड एक्टर के किरदार में हमें नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो गौरव को, रमेश, राघव, रमेश जी को. तो पिक्चर के लिए हमारे जो पप्पू अन्ना साहब हमारे बहुत पुराने फ्रेंड हैं, एंड शेट्टी साहब अब आए, बहुत अच्छा लग रहा है. पायल हमारे पिक्चर में भी चैनल आप आए तो हमारे लग रहा बहुत अच्छी बात है. रजा साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस पिक्चर के लिए. ट्रेलर हमको बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली पसंद है, और कुछ मैसेज भी है, और जो मैंने आया वो इसका मैसेज है. एंड आउट एंड आउट मसाला फिल्म, एक्शन, गाने और अच्छे रोमांस. राघव की फर्स्ट फिल्म है तो हमको बहुत बहुत मुबारकबाद. पूरी फैमिली को, उनको ही नहीं, उनकी मम्मी, उनकी बहन, रमेश जी और पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से. बहुत विशेष फिल्म खूब चले और बहुत नाम रोशन हो राघव का. हमारे बेस्ट विशेष और बेस्ट उनके लिए हम लोग बहुत लोग गैस वैस कुछ भी नहीं, हम लोग तो सिर्फ टेक्नीशियन हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो पूरी टीम यहाँ पर करी है सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन.
मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुनील शेट्टी सर कुछ कहें। आई एम श्योर सर, क्योंकि आप खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, यू आर अ ग्लोबल आइकन, वी हैव सीन यू प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स इन लॉट ऑफ मूवीज, लेट इट बी रोमांटिक, लेट इट बी एक्शन, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से फॉर दिस मूवी? It's always exciting for a youngster, you know, और I've seen Raghav काफी सालों से जानता हूँ और ड्रीम थी उसकी, so I wish the entire family the very best. I think शायद जितना Raghav excited उससे ज़्यादा माँ और बहन excited होगी, and the father who has always shown so much love and immense love for his son. I wish them the very best. और मैं मानता हूँ कि ये फिल्म चलेगी क्योंकि जब अब्बास भाई और मस्तान भाई किसी फिल्म को रिलीज करते हैं, ऑडियो रिलीज करते हैं, हमेशा लकी कहा जाता है। शुरुआत सही है, stalwart actors, Raghav bhai, all of you here, so I think the entire team the very best, Bapuji, director, all of you the very best, and like always, make sure that you score and score big. And give it your best. Thank you. Now I request Payal ma'am, we have been watching you, I have seen this trailer more than thrice, and every time this item number, I'm sure is going to be a party anthem. So what would you like to say? Like you have a very special appearance in the movie. Well, congratulations to everybody, especially Raghav, Ramesh ji, आपको, आपकी सिस्टर को नाम भूल गई मैं, and it's been a pleasure to work with them because Ramesh ji is a very good friend of Sangram, and जब उन्होंने बोला कि there's a song वो भी हिंदी में है एक भोजपुरी फिल्म में, so I was like really excited because as an actress we all love to sing and we love to dance. So I really hope ये गाना आप सबको अच्छा लगे, and जैसे सुनील सर ने बोला अब्बास मस्तान जी आए हैं, उन्होंने ऑडियो रिलीज किया है, so I think that it can't get more auspicious than this, and I really hope this film works in the Bhojpuri film industry because regional cinema is supposed to be appreciated, I think all over India. India is not just Hindi films, it's an accumulation of regional films, whether it be Bhojpuri, South, Telugu, Punjabi, Gujarati, and I think that's great to be a part of a regional film. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was remarkable words, I must say. Sir, आप तो एक्टिंग के बादशाह हैं, तो मैं चाहूंगी प्लीज आपने ट्रेलर देखा, आप क्या कहेंगे मूवी के बारे में? मैं ये कहूँगा कि राघव जो है एक एक्टर नहीं है, डायनामाइट है। राघव जो है एक एक्टर नहीं है, फोर्स है, फोर्स। जिस तरीके से आप आंधी को रोक नहीं सकते, तूफान को रोक नहीं सकते, इसी तरीके से आप डायनामाइट, आप फोर्स को नहीं रोक सकते। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म जो है, मैं से कहूंगा हल्ला मचा के गई, हल्ला मचा के गई, हल्ला मचने वाला है, यकीनन मचने वाला है। और सिर्फ हल्ला ही नहीं मचेगा, बल्कि इतिहास लिखा जाएगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इतिहास लिखा जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे छोटे भाई रमेश नैयर साहब को। बात कम करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, तो इनके लिए एक शेर कहूंगा, इनकी नजर करूंगा। बात कम करते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। उन्हें बोलने की क्या जरूरत है, उनका हुनर बोलेगा, उनकी फिल्म बोलेगी। अच्छे नियत के इंसान हैं, नियत में हरकत है और हरकत में बरकत है। आई विश माई हार्टफेल्ट congratulations, my good wishes to this young dynamic actor, and I'm sure that he's going to take the whole film industry by storm. Mark my words. Thank you so much, sir. And we welcome Sunil sir on stage.
सर आने में थोड़ा सा लेट हो गए, सर को ट्रेलर हम दोबारा से दिखाएंगे. By the meanwhile, I request Rakhi ma'am to say a few words, please. Ma'am, I must say looking gorgeous. Thank you so much मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए. लेकिन मैं राघव को बहुत बहुत मुबारक कहना चाहती हूँ, रमेश जी को और पूरी फैमिली को. राघव को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, जिनमें इतनी मेहनत करते हैं, डांस करते हैं, एक्रोबाइट्स करते हैं. मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले रजा जी उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत पूरी प्रैक्टिस करके आए हैं और बहुत अच्छे डांसर हैं. और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी फिल्म बहुत अच्छी जाएगी और सारे सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे जाएंगे. एंड पायल शी इज़ माई फ्रेंड और बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग किया है. मुझे लगता है पायल तुमसे अच्छा कोई डांसर नहीं है और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो. आई थिंक डांसिंग में कोई राखी को बीट नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. सुनील सर आप आए, बहुत अच्छा लगा. और सर आप लोग का आशीर्वाद सब पर रहे सर, बिकॉज आप बहुत नंबर 1 डायरेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में. रजा जी सब लोग को बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपकी फिल्म एकदम सुपरहिट हो जाए. थैंक यू. I request Mr. Lakhani to please join us on stage. Thank you so much, ma'am, for such kind words. Now I request Sunil sir to say a few words, please. Sunil sir. सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, सर ने कहा आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं ना. लेट हो, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. ये फिल्म सभी लोगों ने बोला जैसे सेम टू यू. जितनी फिल्म की लागत है 100 गुना ज्यादा कमाए या से बहुत ज्यादा. आप बहुत कमाओ माल, आप बहुत कमाओ माल, कमाते कमाते गुजर जाए साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल. और ऐसी फिल्में आप बनाते रहिए. इस फिल्म में तो गेस्ट अपीयरेंस है, एज ए गेस्ट बुलाया था रमेश जी ने. दुआ करता हूँ अगली फिल्म में पेइंग गेस्ट बुलाए. राखी जी के बारे में क्या कहूँ. राखी तुम्हारे अंदर तुम्हारे इतनी खूबसूरती है, इतनी सुंदर दिखती हो राखी, तुम्हारे सामने पानी कम है बाकी. बहुत अच्छा बोलती है राखी सावंत. एक बार राखी सावंत ने अपना स्वयंवर रचा लिया था और हमारे कवि मित्र एहसान कुरैशी शायद ऑन द वे आने वाले, वो चले गए थे. राखी का स्वयंवर तो पता है ना आपको. उसके बाद वो चैनल बंद हो गया था. इमेजिन कीजिए कौन सा चैनल था वो. तो राखी एहसान कुरैशी चले गए थे शादी की बात करने के लिए. किस तरह से देखिए, राखी 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 बनोगी क्या मेरे भतीजों की काकी. तो शराब में साकी, बस दुआ चाहिए तेरी माँ की. माँ मुझ पे एहसान करना मेरे लिए ये एहसान. इनके साथ में जावेद अख्तर साहब भी चले गए. जावेद साहब जो हमारे बहुत ही फेवरेट. तो दुनिया में जावेद साहब के बारे में एक बात बता दूं जो मैंने ऑब्जर्व की है. थोड़ा 2 मिनट आप कर लूँगा तो आप सुनेंगे ना. आप लोग तारीफ बजा दीजिए. पर जावेद साहब के बारे में जो मैंने छोटी सी चीज ऑब्जर्व की है, वो दुनिया में ज्ञान देने आए, लेने नहीं. तो वो जावेद साहब राखी से शादी की बात करें. राखी आपसे बात करें जावेद साहब. भाई देखिए जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये नहीं कहता कि यकीन मानिए सही चीज हो तो जावेद मियाँ दाद देगा, सही चीज हो तो जावेद मियाँ दाद देंगे और गलत चीज हो तो जावेद मियाँ डांट देंगे. यकीन मानिए तो राखी तुम दुल्हन बन के तब आना जब घर में ना हो शबाना. हमारे रजा साहब आवाज के बेताज बादशाह. जब भाभी को पहली बार रजा साहब से प्यार हुआ था, भाभी को पहली बार जब रजा साहब से प्यार हुआ तो भाभी गई अपने पापा के पास. बोले पापा पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ. तो भाभी के पापा ने कहा कौन है वो नामुराद. बोले पापा गलत कर रहे हैं आप, वो नामुराद नहीं रजा मुराद है. तो शुभकामना है. और ये मेरी खूबसूरत को एंकर आ गई. मैंने उनको कहा था कि मुझे एंकर रख लीजिए, मैं उनको एंकर चाहिए भयंकर नहीं. तो बहुत सारी शुभकामनाएं. और तहे दिल से इसके लिए भी शेयर करना चाहूंगा कि बेवफा तेरे प्यार में इस, आप वाह कीजिए, बेवफा तेरे प्यार में इस कगार पे आ गया, बेवफा तेरे प्यार में इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया.
Thank you so much, sir, for the presentations. इतने सारे बड़े लोग इस मंच पर मौजूद हैं, साथ में मैं मौजूद हूँ इनके साथ, ये मेरी खुशनसीबी है। और सब ने फिल्म के बारे में जो शुभकामनाएं दी है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और राघव के बारे में सब लोगों ने तारीफ की और बाकी वो तारीफ के हकदार है, वो काबिल तारीफ है। फिल्म रिलीज होगी उसके बाद मुझे लगता है कि राघव को रुकना नहीं पड़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री में वो एक अपना अच्छा मुकाम बना के रहेगा। थैंक यू। मैं बनाया, लेकिन उन्होंने जो खाना देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा और हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि फिल्म बहुत चले, सुपर हिट हो। धन्यवाद। Now I request all of you, please, एक group photograph के लिए with all those widest smiles on the faces, आप please join कीजिएगा सब, everyone. I request Rakhi ma'am to come up on stage for this photograph, please. Rakhi ma'am. सिनेमा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, शायद उतना ही इम्पोर्टेंट जितनी हिंदी फिल्म है। तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी फिल्में बहुत ही अच्छी फिल्में बन रही है और क्वालिटी की फिल्में बन रही है। आप देखोगे तो शायद बहुत सारी हिंदी फिल्में अब अगर प्रेरणा लेती है और अगर सब्जेक्ट्स लेते हैं तो रीजनल सिनेमा से ही। तो आई थिंक क्योंकि रीजनल सिनेमा इतना ग्रो कर रहा है, it is very very important that we pay attention to all this cinema. At any point of time, if you're given a good script or anything, would you be preferring to do a film actually? Yes, but you know the thing is, I'm at a stage where it's been 3.5 years and there's very little interest to do films. I am listening to scripts now, but let's see, I don't know what's going on in my mind at all. But yes, I don't differentiate I don't see any difference between regional and Hindi. It's as prestigious, as good to do, but also depends on the kind of time you have and what you are doing. So I think you've taken a break because of your son. Actually, you're trying to. No, not at all. I think Ahan will be launched. He's being launched by the best that there is in the business, Sajid Bhai. So he's very very secure. I think I came into a stage where Dad wasn't feeling too good also. So I think the best 3.5-4 years that I spent of my life was with him, giving him all the attention that he deserved. Let's see, there's a lot other that is happening in my life, but hopefully soon I should get back to work. Also in the Bhojpuri industry? No, right now, I am making content, but I'm making different kind of content. It's not cinema. There is a lot of other stuff that we're doing. Happy doing that. The day I do get back into cinema, it will be definitely begin with Hindi. I'm not averse to any kind of regional language. I've always respected regional language a hell of a lot. If Sunil Shetty became Sunil Shetty, it was probably the films that he did from the south, Malayalam, Telugu, Tamil, whether it was Hera Fairy, whether it was Ant, whether it was Bhai, whether it was Krishna. There were a lot of Gopi Kishan, there were a lot of South remakes. So I respect regional cinema a hell of a lot, because somewhere down the line they understand mass and they understand emotions just beautifully. So full respect, and I'm here today because Ramesh ji and Raghav both are very very close to me. Ramesh ji is a very close friend of mine, a very wonderful human being, and for me what has always mattered is how good the individual is and my relations with people, and I've made sure that I've always kept that. So I'm here to wish the son Raghav the very best and Ramesh ji as a producer first.
चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो वुमेन के एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और फिर इस तरह का न्यूज़ मिलना आसिफा के बारे में कितना दर्दनाक, कितना दिल दहलाने वाला है आपके लिए? मैं तो जान से मार देता हूँ उनको, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि घटिया जो काम किया हुआ, आई थिंक सारा देश खड़ा हो गया, जो बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे लोग बोल रहे, तो बोलने में कभी कभी बोलता हुआ ऐसे लगता है कि हम भी पब्लिसिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन खून खौलता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। मैं और आतिया अगर काम करते आ रहे हैं बच्चों के लिए, तो आज से नहीं करते आ रहे, पिछले 27 साल से मैं जुड़ा हूँ सेव द चिल्ड्रन इंडिया से, जो बच्चों के लिए काम करते हैं और सिर्फ बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं। उन बच्चियों को जो फंसी हुई है गलत जगहों में, उन्हें वहाँ से निकाल कर उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि खून खौलता है, नहीं, आई मीन शर्मनाक बात है। आई थिंक एज इंडियंस हमको शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे ऐसी चीज़ों को बार बार नज़रअंदाज करते और पास होने देते हैं, लेकिन आई थिंक इस बार देश एक हुआ है और उन्हें सज़ा मिल रही है, और सज़ा छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, सज़ा ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा किसी को ऐसे सोचने से पहले भी डर लगना चाहिए। हमने देखा कि जब बड़े केस आते हैं, बिजनेसमैन एक्टर के बड़े केस, तो सुनवाई और न्यायालय बहुत जल्दी ही एक्शन लेता है। फिर इस तरह का केस कोई आता है तो फिल्म आने के बाद भी रिहा हो जाता है। आई थिंक अच्छी बात कही आपने, तो आई थिंक सिस्टम बदलना बहुत ज़रूरी है और हम सबको एक साथ होके खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। लंबा चौड़ा, मेरे से लंबा चौड़ा है, तो आई एम श्योर कि मारधाड़ भी अच्छा ही करेगा। आई विश हिम द वेरी बेस्ट। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो बतौर एक्टर के नहीं हूँ, सुनील शेट्टी बन के नहीं आया, बल्कि रमेश जी का एक दोस्त, राघव का एक वेल विशर बनकर यहाँ आया हूँ, एंड आई विश हिम द वेरी बेस्ट। मैं जानता हूँ कि एक आउटसाइडर, एक रैंक आउटसाइडर जब इंडस्ट्री में आता है तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं भी उनमें से था जो एक मौका मिला और मैंने छलांग लगा दी। आई विश हिम द बेस्ट एंड आई विश द एंटायर टीम द वेरी बेस्ट। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, रीजनल सिनेमा को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सर मेरे लिए सर आए, उनके लिए मतलब कुछ शब्द नहीं, बस वो आए, उन्होंने इतना आशीर्वाद दे दिया मेरे को, बहुत बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो। आई विश हिम द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपरस्टार चलो हल्फा मचा के गईल। हाँ हाँ हाँ, हल्फा मचा के गईल भोजपुरी फिल्म का आज ट्रेलर लॉन्च जी, बहुत अच्छा लगा। हल्फा मचा के गईल जो ट्रेलर देखा बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट लगा। और राघव ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा डांस किया है, एक्टिंग करी है। और रमेश जी जो है राघव के पिता है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है राघव के पीछे, और मैं राघव को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बहुत ही मेहनती लड़का है। एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म हल्फा मचा के गईल बहुत चलेगी। और इसका जो म्यूज़िक है वो याशी म्यूज़िक में आप देखिए और सुनिए। राखी जी ने बोल दिया हल्फा मचेगा। बिल्कुल बिल्कुल मचेगा। आप तो पैदा हुए हो हल्फा मचाने के लिए। नहीं, मैं सपोर्टर हूँ जी। She's my supporter. Yes, always. All the make हल्फा। हाँ, to make हल्फा। Yes, thank you so much. सबसे पहली बात तो ये सब लोग मेरे वेल विशर्स तो बन के आई हैं, लेकिन ये इन सब से सीखने को बहुत कुछ मिला। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, थैंक यू टू एवरीवन, सुनील सर, रज़ा सर, राखी मैम, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो लोग आए। अब्बास मस्तान सर, जो इतने बड़े डायरेक्टर, उन्होंने मेरी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करा, तो आई होप कि पिक्चर बहुत अच्छी चले। इसमें क्या किरदार था आपका? पहली फिल्म की कितनी तैयारियां करनी पड़ी थी?
स्टार्टिंग में मेरे को भोजपुरी सीखनी पड़ी, मैंने 2 महीने वर्कशॉप करी, और जो मेरा कैरेक्टर है बहुत आज के टाइम पे याश लड़के का कैरेक्टर है, और वो लड़की जब शिप्रा आती है वो कैसे मेरे को बदलती है वो आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। और इसमें आपको सपोर्टिंग के लिए कई सितारे नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं जैसे बोला कि मैं बहुत खुश भी हूँ और इनका बहुत थैंकफुल भी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। आज तक आई डोंट थिंक सो कि एक नए लड़के को किसी ने इतना सपोर्ट करा होगा, और उन्होंने करा। उनका बस दुआ है उनकी कि मैं आज यहाँ पे उनके साथ खड़ा हूँ। कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे शूटिंग के टाइम की? यादें तो बहुत हैं। हम हल्फा मचा के गल के टाइम पे बहुत है। मेरे को रज़ा सर से सीखने को बहुत कुछ मिला। रज़ा सर ने अपने बारे में इतना अपनी हिस्ट्री बताई सब, और आज उनकी वजह से मैं ये है कि अपना डे टू डे इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को ये देखना कहेंगे भाई ये पिक्चर रूटीन फिल्मों से अलग है। हल्फा मचा के गल ज़रूर देखिए, 11 मई को रिलीज़ हो रही है, तो जस्ट प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। थैंक यू। आपने देखा भोजपुरी में, क्या कहना चाहेंगे? ये हल्ला मचा के गई ये फिल्म जो है हल्ला मचाएगी। हम भी इसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं। मैं, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, हम आपको नाचते हुए दिखाई देंगे। और ये लड़का जो है ये कमाल का एक्टर है। आपको लगेगा ही नहीं कि इसकी ये पहली फिल्म है। जिस तरीके से, जिस आत्मविश्वास के साथ इसने काम किया है, कमाल का काम किया है। और रमेश नैयर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कई बार फिल्में मेहनत के साथ साथ जो आपकी नीयत होती है, नीयत पे भी चलती हैं। ऊपर वाला भी आपकी नीयत को परखता है। तो बड़ी अच्छी नीयत के साथ ये फिल्म बनाई गई है, और मेरी सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ। सर, बात करें राघव पहली बार एंट्री कर रहे हैं इस सिनेमा के माध्यम से, एक नया जोश है, क्या कहना चाहेंगे राघव के लिए? देखिए, वो अमिताभ बच्चन हों, वो दिलीप कुमार हों, वो सारे दिग्गज एक्टर हों, सबकी शुरुआत तो पहली फिल्म से होती है। पहली फिल्म तो करनी पड़ती है, पहला शॉट देना पड़ता है। ये राघव की पहली फिल्म है, राघव ने पहली फिल्म की है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख लीजिएगा उसका काम, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। और जो गाड़ी कमाई उससे टिकट लेगा, उसे भी राघव का काम बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे हल्फा मचा के गई? हल्फा मचा के गई, हल्ला मचा के गई। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देश में जो माहौल है, 8 साल की बच्ची के साथ जो है बलात्कार होता है, हत्या कर दी जाती है उसकी, और इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रहे हैं। आज भी हरियाणा में जो है एक मामला सामने है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ऐसा कानून पूरे मुल्क में बनना चाहिए, ना सिर्फ एक स्टेट में बल्कि पूरे मुल्क में। पार्लियामेंट से ये कानून पास होना चाहिए कि बलात्कारी वो किसी बच्ची के साथ हो, किसी महिला, किसी लड़की के साथ हो, उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। फांसी से कम उसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसका आप कत्ल करते हैं वो तो मर जाता है, वो चैप्टर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिसका बलात्कार होता है वो जीते जी मर जाती है। एक कलंक लग जाता है उसके माथे पर, उसके घर वालों पर। किस तकलीफ के साथ वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं ये वही जानते हैं। जो तन लागे सो तन जाने, उन्हीं को पता है कि किस तकलीफ से, किस मानसिक यातना से वो गुजरते हैं। तो फांसी से कम सज़ा बलात्कार की नहीं होनी चाहिए। सुनील जी, बात करें हल्फा मचा के गई, एक शानदार ट्रेलर देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा प्राउड फील हो रहा है इस बात पे कि हल्फा मचा गई इस फिल्म का, इस मल्टी स्टारर फिल्म का छोटा सा हिस्सा मैं हूँ। और इस फिल्म को बनाने वाले रमेश नैयर जी और उनके बेटे राघव नैयर, उनके पूरे परिवार को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, ये फिल्म सुपरहिट हो जाए और हमारे रमेश साहब बहुत ज़्यादा फिल्में बनाएं, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे कैरेक्टर में, अच्छी अच्छी फिल्मों में, हिंदी, भोजपुरी और सभी भाषाओं में आपके सामने आते रहें। सर, एक
नए जोश के साथ नए चेहरे ने पदार्पण किया है, वो भी भोजपुरी सिनेमा में, और जिस तरह से काबिल तारीफ हुई है उनकी ट्रेलर देख के, आप क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी जनता हमेशा वैरायटी एंटरटेनमेंट पसंद करती है। हमारे पुराने जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं, नीरव बुआ जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, मनोज तिवारी हो गए, खेसारी लाल जी हो गए, अब नए में पवन सिंह हो गए, लेकिन नए में भी उनके पास में कोई कलाकार नहीं था, तो मेरे ख्याल से राघव जो है वो भी अब उन्हीं श्रेणी में खड़ा हो जाएगा जो इन महान कलाकारों ने अपनी जगह बनाई, क्योंकि राघव बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा को लेकर हल्फा मचा के, आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो, आपके अंदाज में? दर्शकों आपकी अब हो गई है खोज पूरी, दर्शकों आपकी अब हो गई है खोज पूरी, क्योंकि राघव आ रहा है डेब्यू करने इन भोजपुरी। हल्फा मचाई गई ये पिक्चर बहुत सुपर हिट होगी और आपका प्यार पाने वो नज़दीक आएगा, अब नहीं होगी उससे आपकी दूरी। लव यू ऑल। तो आपसे निवेदन करता है रतन नूरा और उनकी पत्नी रतन नूरी, ये फिल्म देखना जरूर पूरी। थैंक यू सो मच। देश में इस तरह का जो माहौल बना है, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सिलसिला रुकता नहीं है। आज भी हरियाणा में मामला देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? शर्मिंदा हूँ, सीरियसली शर्मिंदा। मुझे लगता है कि जो ऐसा कृत्य करते हैं, कानून उनके लिए होना नहीं चाहिए, कानून इंसानों के लिए होता है, ये शैतानों के भी ऊपर है, और इनको कानून के तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। इनको वही सज़ा देना चाहिए जो इंस्टेंट सज़ा। अगर पता चल गया है कि इन्होंने क्राइम किया है तो तुरंत इनको फांसी भी लटका देना चाहिए, जनता के हवाले कर देना चाहिए कि जनता जैसे इनको सज़ा दे सकती है, ताकि इनकी रूह कांप जाए। उनको देखने के बाद अगर कोई शैतानी करने की सोच रहा है, शैतानी या हैवानियत करने की सोच रहा है, तो उसे सबक मिल जाए। मैं नहीं समझता कि इस टाइप के हैवानों को कानून के दायरे में कोई सज़ा है, वो सिर्फ इंसानों के लिए होती है। जो इंसान से कोई गलती हो जाए तो कानून उनका इंसाफ कर सकता है, इनका नहीं, इन हैवानों का नहीं। रेडी? पायल जी, बात करें हल्फा मचा के, ट्रेलर लॉन्च हुआ, बड़ा खूबसूरत फिल्म लगा और खासकर इस फिल्म के हीरो की बड़ी तारीफ हुई, और आपके साथ जो गाना है उसके लिए तो माशाल्लाह क्या बात है, सब लोग जी क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि रीजनल सिनेमा आज के दौर में बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, एंड भोजपुरी में ये अच्छी फिल्म आपने देखी जिसका ट्रेलर आज लॉन्च हुआ। सो आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस मेरे को डांस और सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, एंड जब रमेश जी जो हमारे फैमिली फ्रेंड है उन्होंने हमें ये सॉन्ग ऑफर किया जो हिंदी में था, तो मैंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मुझे एक नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती, और कॉर्पोरेट फिल्म के बाद ये मेरा दूसरा आइटम सॉन्ग होगा हिंदी में। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो क्या कहना चाहेंगे? राघव नया था और आप जो है गाना उनके साथ किया, क्या कहना चाहेंगे? राघव इज़ लाइक फैमिली, लाइक आई सेड, एंड वो बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर है, एंड आई रियली होप कि ये फिल्म उनके लिए चले, उनकी फैमिली के लिए चले, क्योंकि रमेश जी संग्राम जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एंड सबने इतनी मेहनत करी है फिल्म के लिए। सो आई रियली होप ये फिल्म राघव और उनकी फैमिली के लिए आप लोगों को सबको पसंद आए। रमेश नैयर जी प्रोड्यूसर है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे सुनील सर ने बोला, रमेश जी इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एंड जैसे प्रेम चोपड़ा साहब ने भी बोला, रमेश जी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग ह्यूमन बीइंग, एंड मैं रियली चाहती हूँ कि उन्होंने जितनी मेहनत करी है ये फिल्म के ऊपर, ये फिल्म उनके लिए, उनके सन के लिए एक अच्छा लॉन्च पैड हो। आप ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हम सब हिंदी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं, मगर एक्चुअली फिल्म वो अच्छी हमें पसंद करनी चाहिए जिसकी कहानी अच्छी हो, जो सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देती है, चाहे वो रीजनल फिल्म ही क्यों ना हो। एंड जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा, गुजराती सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, साउथ इंडियन सिनेमा की एक अलग मार्केट हो गई है, आई होप हम सब ये अलग अलग रीजनल फिल्मों को पसंद करें और हिंदी फिल्मों की लेवल पे लेके आए। भोजपुरी सिनेमा के बारे में आप क्या कहना चाहिए, जैसे कि देखा और भी फिल्में आपने देखा होगा? जी
मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी सिनेमा छोटा बड़ा नहीं होता। अमिताभ जी ने भोजपुरी फिल्म की है, जया मैम ने जो भोजपुरी फिल्में की हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टोरी के साथ जुड़ रहे हैं, आप कौन से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। एंड ये जो सेटअप है था हफला मचा देगा, ये बहुत अच्छे लोगों का प्रोजेक्ट है एंड इनके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आया तो क्या फुल मूवी आप भोजपुरी में करना चाहेंगे? आई रियली डोंट नो, बिकॉज एक नया लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, मगर अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, एक अच्छा स्टोरी बोर्ड हो तो क्यों नहीं, क्योंकि आई बिलीव दैट जिस तरह से आजकल एक्ट्रेसेस प्रियंका एवरीबडी रीजनल सिनेमा प्रोड्यूस कर रहे हैं, करण जौहर जी का भी ब्रांड मराठी सिनेमा को सपोर्ट कर रहा है, तो आई थिंक अगर हम बॉलीवुड से आके रीजनल सिनेमा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं हरदम कहती हूँ कि इंडिया इंटरनेशनली फेमस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के रेप केसेस के बारे में सारी दुनिया पूछ रही है और जानना चाहती है। तो इसका रीज़न ये मैं रिलीजन के ऊपर नहीं डालती हूँ, क्योंकि हम लोग एज मीडिया, एज सेलिब्रिटीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के तरफ कि हम रेप को रिलीजन पॉलिटिक्स में नहीं उलझाएं, हम रेप को एक वोट बैंकिंग में नहीं उलझाएं। रेप होता है एक फीमेल के साथ एंड इट इज़ अ रेप ऑफ अ वुमन। यहाँ पे वो हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, ये बिल्कुल आपके मायने में नहीं आना चाहिए। और जो लोग, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे सेलिब्रिटीज़ हो, ये रेप को, असीफा और उन्नाव के रेप को रिलीजन और पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं, मेरे को उन पे बहुत शर्म आ रही है। मैं खाली कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे इंडियन मेल की मेंटालिटी बदलनी चाहिए, माइंडसेट बदलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों चाहते हैं कि इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट में इंडियन फीमेल पे करें, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छी स्टोरी के साथ ट्रेलर लॉन्च हुआ और सबने तारीफ किया। बॉलीवुड के काफ़ी सितारे नजर आए पहली बार भोजपुरी सिनेमा के ट्रेलर लॉन्चिंग में, और आपने एक शानदार फिल्म बनाई जो काफ़ी तारीफ की जा रही। ट्रेलर देख के क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रमेश जी को, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, और उनके बेटा राघव नैयर जो इस फिल्म में मेन प्रोटैगनिस्ट है। इन्हीं लोग के बदौलत ये जितने सारे बॉलीवुड के चेहरे आप लोग देख रहे थे, डायरेक्टर डी अब्बास मस्तान जी हुए, रजा मुराद जी हुए, प्रेम चोपड़ा जी हुए और सुनील शेट्टी जी हुए, सारे इन्हीं के लिए इनके साथ पर्सनल रिलेशन था, जिसके कारण एक भोजपुरी फिल्म को ब्लेसिंग देने आए। ये हमारे लिए भी सौभाग्य बात है, और इतने सारे अच्छे आदमियों का ब्लेसिंग्स मिला होगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली अपनी हल्फा मचा के गई रियल में हल्फा मचाएगी, ये उम्मीद तो रख सकते हैं। सर, जो उम्मीद के साथ आप सिनेमा बना रहे थे और प्रोड्यूसर ने जो चाहा था एक नए लड़के को लॉन्च करना था, आज वो सफल हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस पर? बिल्कुल, ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि एक नए लड़कों को लेकर, मोस्टली भोजपुरी में होती क्या है कि प्रॉपर फिल्में बन नहीं पाती है नए लड़कों को लेकर। ये फिल्म प्रॉपर बनी भी, इसमें सेलिब्रिटीज स्टार भी आए, एक गाने में आइटम सॉन्ग में पायल रोहतगी जी आए, और आप देख रहे हैं कि ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च में सारे बड़े बड़े हस्तियाँ आए। तो ये एक तरह से ड्रीम्स कम ट्रू जैसा होता है हम भोजपुरी वाले के लिए, क्योंकि इतने नए स्टार को लेकर इतनी सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर पाना इट्स ए बिग थिंग। और मुझे लगता है कि रमेश नैयर जी ने इसमें सफलता हासिल की है। उसी तरह से भगवान करे, अल्लाह करे कि हमारी फिल्म को भी सफलता मिले और राघव एक एस्टेब्लिश स्टार बने भोजपुरी के लिए। तो ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे जब फिल्म रिलीज होगी? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी से वादा नहीं करूँगा कि बहुत बेहतरीन और बहुत डिफरेंट और ये कुछ है। एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है, और जिसमें जो भोजपुरी तड़का है, गुदगुदी है, सब कुछ है। एक नए लड़के हैं, नए लड़के को सहारिए। नए जब रहता है सबसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी खामियां गलतियां होती है, तो इन गलतियों खामियों को माफ़ करते हुए हमारे भी, मैं भी 14 फिल्म किया हूँ, मुझे अंदर भी कुछ गलतियाँ कमियाँ होंगी, उसको नज़रअंदाज करते हुए फिल्म को देखें और सहारे, और फिल्म को वाकई में एक बड़ी हिट बनाए। यही उम्मीद करूंगा दर्शकों से, और आग्रह करूंगा कि फिल्म को जरूर देखें एक बार जब मई महीना में रिलीज होगी तो। ओके, थैंक यू सर। चाकी गई एक शानदार फिल्म का ट्रेलर देखने को मिला, बॉलीवुड की काफ़ी सितारे नजर आए, क्या कहना चाहते हैं? सर, हमने भोजपुरी में एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है। ये कॉमेडी फैमिली मूवी है और इसके बेहतरीन गाने हैं। और बॉलीवुड में क्या, मेरा बहुत बड़ी एक अच्छी इवेंट कंपनी है और मैं पिक्चरों से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। तो इन लोगों को मैंने बोला कि मैं बेटे को लॉन्च करना है, तो उन्होंने मेरे को आइडिया दिया एक बढ़िया गाना शूट करो सेलिब्रिटी वाला, और
और एक मैंने हिंदी में आइटम सॉन्ग अच्छा किया कि जिससे आपको ये भी लगे कि हिंदी के आर्टिस्ट भी भोजपुरी में काम कर सकते हैं अगर अच्छा प्रोजेक्ट बने तो। जी सर, जैसे कि भोजपुरी सिनेमा से बॉलीवुड की दूरी बन गई थी, लेकिन वो आपने एक सेतु का, एक पुल का काम किया है जोड़ने का, ये कैसा ख्याल आया कि बॉलीवुड भी नजर आना चाहिए? नहीं देखिए, भोजपुरी वाला ना कुछ लोग तो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, कुछ लोग ने भोजपुरी को बहुत चीप कर दिया। तो मेरे मन में शुरू से मैं भोजपुरी से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने अपने बेटे को जो लॉन्च करना, मैं ये कहा कि मैं पहले भोजपुरी से लॉन्च करूँगा बेटे को, और इसमें हिंदी का टेस्ट लेके आऊँगा कि भोजपुरी को ये लगे कि अब अच्छा प्रोजेक्ट बनाते तो हिंदी का आर्टिस्ट आपके साथ है। तो आज जो फिल्म बन के तैयार है तो क्या कहना चाहेंगे? सर फिल्म तो आपके सामने है, बाकी आप बताएंगे जो बताएंगे। हमने तो एक फिल्म बनाई है, अच्छी फिल्म बनाई है, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, विशेष चाहिए, बाकी तो आप बाकी पब्लिक के हाथ में जो फिल्म कब रिलीज हो रही है, दर्शकों से क्या कहना? सर फिल्म 2nd वीक ऑफ मई में रिलीज हो रही है, 11 मई को। अपील क्या करना चाहेंगे दर्शकों से? तो मैं ये अपील करूँगा कि आप आइए परिवार के साथ, एक साफ़ सुथरी बढ़िया कॉमेडी और एंटरटेनिंग म्यूजिकल भोजपुरी मूवी देखिए और बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। सर एक चैनल आईडी दे दीजिए। एक प्रयास सफल हुआ है और बॉलीवुड भोजपुरी को बांधने का एक सेतु का काम किया हल्फा मचा के गई, जिसका एक शानदार ट्रेलर देखने को मिला। क्या थैंक यू सबको, मेरा नमस्कार। अभी आपने ट्रेलर देखा, पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा। और हम लोग इतने लक्की है कि हमारे साथ जो पायल जी ज्वाइंट हुई, पायल जी कभी आज तक किए ही नहीं भोजपुरी मराठी, अभी ये करना शुरू किया, इनको रिक्वेस्ट किया, रमेश जी बोले अपने घर के सब हो गए, बात करके पायल जी ने गाना किया और वो गाना आप देखो हल्का मचा देगा पूरा, हुक्का बुक्का 3 तरह का कमाल गाना, कमाल डांस किया पायल जी ने, इतना मेहनत की इन्होंने, आज तक कोई आर्टिस्ट इतना मेहनत करता नहीं। बोले हाँ ठीक है ना, सेट पे कर लेगा, 2 4 बार 5 बार रेसल करके गाने में 4 चांद लगा दिया। बस इनका बड़प्पन ने बहुत अच्छा काम किया, यही बस पिक्चर हमारी चले, ऑडियंस देखे, बस यही हम चाहते हैं। सर एक गाने में जो है जिसमें कि आपने कोरियोग्राफी किया, उसमें भोजपुरी और बॉलीवुड के संगम देखने को मिला, तो कैसा इमेजिन किया आपने? ये ऐसे ही बस रमेश जी ने बोले अपने सब स्टार है उनको यूज़ करते हैं, मतलब अच्छा है। हैप्पी न्यू ईयर में था, फराह खान ने किया था, हम अपने भोजपुरी में एक नया चीज़ करें, तो हम लोगों ने कोशिश की है, अगर सक्सेस हुआ बस ऑडियंस लाइक करे, बस वो फिर सक्सेस हो जाए। सर इतने बड़े सितारों को एक गाने में एक साथ एक मंच में लाना बड़ा रिस्क होता है, बड़ा मैनेज करना होता है। मेहनत नहीं, वो सब फैमिली रिलेशन वाले, और उनको मैंने एज ए रजा मुराद को हीरो भी नचाया हूँ, रंजीत जी को नचाया हूँ, प्रेम जी को भी डांस करवाया, इतने सालों के बाद मिले तो एक ऐसा लगता है अपनी फैमिली मिल गई। तो सबसे खुशी मेरे को मिली कि सब लोग मेरे फैमिली के मेंबर्स आ गए थे। एक नया सितारा पदार्पण किया है, जिसके जो है अभी कहते हैं पूत पालने में नजर आते हैं पाँव के। भाई मैंने आपको पहले भी बोला था, राघव जैसा एक नया अपकमिंग स्टार, इतना अच्छा डांसर, कमाल है, मेरी गारंटी है ये पिक्चर 100% चलेगी और राघव एक स्टार बनेगा, ये मेरे आशीर्वाद है। पायल जी खड़ी है, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? पायल जी के तो साथ मैंने ऑलरेडी कितने गाने किए, अभी ये गाना आप देखोगे तो पायल जी के तो आपको मालूम है। पायल जी को एज ए हीरोइन कब लेके आ रहे हैं? बहुत जल्दी, अभी बोलो तो कल ही मैं बात करके फाइनल कर देता हूँ। सर हम तो चाहेंगे कि वो न्यूज़ भी मिल जाएगी आपको बहुत जल्दी। हाँ जी पायल जी आप बताइए कुछ, आपने गाना किया। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पप्पू जी इज़ अ वेरी सीनियर कोरियोग्राफर, आप सब जानते हैं, एंड इट वॉज अ प्लेजर कि मैंने उनके साथ फिर से ये गाना किया, एंड थैंक यू। अगर कुछ भूल चूक हुई है तो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल ऑन द सेट, एंड रमेश जी जैसे मैं कहती आ रही हूँ इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, संग्राम जी के दोस्त हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमने ये गाना किया, क्योंकि गाना हिंदी में है भोजपुरी सिनेमा में, तो समथिंग न्यू ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग, एंड आई रियली होप कि ये फिल्म इनके लिए, राघव के लिए जो इनके सन है और इनकी फैमिली के लिए चले, एंड गाना भी आप सबको पसंद आए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ही अगर ये फिल्म को पसंद करेंगे तो हम लोग आगे कुछ और नया करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। और पप्पू खन्ना जी ने अमिताभ बच्चन को नचाया है, तो इसको भी नचा रहे हैं, और पिक्चर के गाने हमारी कंपनी रिलीज कर रही है, और पिक्चर के गाने देख करके लग रहा है कि ये फिल्में चलेगी, और आप लोगों सभी
भोजपुरी ऑडियंस से एक यही विनती करेंगे कि एक नया लड़का इंडस्ट्री में उसका आगमन हो रहा है और आप लोग सब मिल करके सपोर्ट करें और ताकि वे जितना मेहनत किया है भगवान उसको सफलता दे और आगे बढ़े, ताकि वे पिक्चर अगर चलेगी तो फिर दूसरा फिल्म करेगा, तीसरा फिल्म करेगा। और हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि ये फिल्म जरूर चलेगी, आप लोग सभी को अच्छा लगेगा, आप लोग ये पिक्चर को जरूर देखें। आपकी कंपनी बड़ी बड़ी फिल्मों की म्यूजिक लेती है, बड़े बड़े सुपरस्टारों की म्यूजिक लेती है, आपने इस फिल्म में क्या देखा? राघव में ऐसा क्या देखा आपने? राघव जब फर्स्ट टाइम मिला था तो काफ़ी हैंडसम है और उसने बहुत सारे कोचिंग क्लास किया, बॉडी बनाया और उसके फादर से डिस्कस हुआ तो उसके पिताजी को उन्होंने बोला एक पिक्चर बनाइए इसको लेके, तो वे पिक्चर शुरू कर दिए और उसमें टैलेंट है, पिक्चर चलेगी 100%। रमेश जी के बारे में आप क्या कहें? रमेश जी बहुत ही सुलझे इंसान है, उनको लगा कि हमारे बेटा में दम है, सभी लोगों ने बोला तो उन्होंने अपने बेटा को एक्सपेरिमेंट किया है और उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा उनको दिल नहीं तोड़ेगा, जरूर सफलता हासिल करेगा। यासी म्यूजिक अभी आगे क्या क्या कर रही है, उसकी क्या प्लानिंग है? यासी म्यूजिक बहुत सारी चीज़ कर रही है। यासी म्यूजिक की फिल्म बन के रेडी है, माँ तुझे सलाम, दूसरी पिक्चर तिरंगा के सारी के साथ शुरू हो रही है। अभी हमने दबंग सरकार का म्यूजिक लिया, दुल्हन व्यापार का म्यूजिक लिया, फिर हल्फा मचा के म्यूजिक लिया, फिर दरार 2 का म्यूजिक लिया। लाइन से फिल्में हमारे पास अभी है। आपने अपना खुद का ऐप भी बनाया है, कैसे फिल्म? ऐसे फिल्म का एक ऐप आज लॉन्च हुआ है, उसको भी आप लोग देखिए। बहुत बहुत मुबारक हो यासी फिल्म म्यूजिक के लिए। धन्यवाद पप्पू जी, साथ ही हम लोग ने काम शुरू किया है। और सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है कि हमारी कंपनी का चौथा अवार्ड शो मलेशिया में 21 जुलाई को होने जा रहा है और आप लोग इसको टीवी पे 28 जुलाई को देखेंगे। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल शो है, एकमात्र इंटरनेशनल शो ऐसी फिल्म करती है। उसको फर्स्ट मॉरिशस में हुआ, सेकंड दुबई में हुआ, थर्ड लंदन में हुआ, फोर्थ मॉरिशस होने जा रहा है जो कि 21 जुलाई को होने जा रहा है। आपकी कंपनी का नाम और आपका नाम जब भी आता है तो साफ सुथरी फिल्मों में गिना जाता है। कितनी भी फिल्में आपकी? हम लोग 50 फिल्म बनाने के बाद हम बिहार के मिट्टी से जन्मे हुए हैं, पटना में मेरा जन्म है, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की ऑडियंस, वहाँ की मिट्टी, सब कुछ से हम वाकिफ़ हैं, इसलिए हम वहाँ फैमिली मूवी चलती है, इसलिए हमने फैमिली मूवी में बनाते हैं। आजकल जो अश्लीलता भरी फिल्में आ रही हैं उसके बारे में आप क्या कहें? जो बिहार यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं वे लोग अश्लील फिल्में बनाते हैं, उन्हें एक टाइम फिल्म बनानी है, दूसरे टाइम वापस छोड़ के चले जाने हैं इंडस्ट्री, इसलिए वे लोग ऐसी फिल्म बनाते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.